Hello students. Today we are going to learn the new concept rectifiers. Actually this is the application of PN junction diode. We will see it is of two types. One is half and another one is full wave rectifier. But before I start this class, firstly we revise the previous lecture. Because of this you revise the previous lecture, then 100% you will connect the new concept rectifiers. In the previous lecture we have discussed about biasing of PN junction diode. What do you mean by biasing of the PN junction diode? When PN junction diode is connected with the simple battery is known as biasing of PN junction diode, and there is of two types to connect the battery. One is true connections called forward biasing, and another one is false connection is called the reverse biasing. And in the last we concluded that in the forward biasing there is a current flow and called activation mode. ਜਦੋਂ करंट फ्लो करूगा इन द फॉरवर्ड बायसिंग, ਉੱਥੇ करंट फ्लो कर रहा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ एक्टिवेशन मोड ऑफ द करंट. एंड इन द रिवर्स बायसिंग देयर इज नो करंट फ्लोज, दिस इज कॉल्ड ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ मोड. क्योंकि हमने ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਰੰਟ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨ ਦ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇयर इज नो करंट फ्लोइंग इज कॉल्ड ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ मोड. ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ AC ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ DC ਕਰੰਟ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਕਰੰਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इस तरह का मोशन होंगे पॉजिटिव नैगेटिव इस तरह का मोशन होंगे AC सप्लाई मोस्टली यही है. बट ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कुछ एप्लीएंसिस एज ने इलैक्ट्रिकल डिवाइसिस एज ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी चार्जर. अपना बैटरी चार्जर है जो किस करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, DC ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ AC ਨੂੰ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ convert AC into DC form is called rectified circuit, and the process in which conversion means AC into DC is called rectification. It is of two types. One is half wave rectifier and another one is full wave. Firstly we are going to discuss about half wave rectifier. This is a circuit diagram. ठीक है, ये देखो प्रैक्टिकली किमें किया जाता है. देखो अपने कोल की है, दिस इज़ अ ट्रांसफार्मर आ वाला ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया है, ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ किया ताकि वोल्टेज को कंट्रोल कर पाए. क्योंकि अपन एंड ते आउटपुट दे विच लोड रजिस्टेंस लगाया होया ताकि कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाए ड्यू टू द ट्रांसफार्मर, एंड अपन आउटपुट दे विच लैस अमाउंट का करंट मिले. इस करके आपने ट्रांसफार्मर यूज़ किया होया. ओके, आपको पता ही है भी हर एक सप्लाई दे विच AC करंट आता है ना, एंड 220 वोल्टेज होंगी एंड 50 हार्ट्स होंगे, तो आपको पता ही है. देखो ये मैंने दो कॉइल्स लगाए हुए हैं. वन इज़ प्राइमरी कॉइल P एंड अदर वन इज़ आउटपुट का जोड़ा सर्किट है आउटपुट नाल कनैक्ट किया होया सेकेंडरी है. दैन दो पार्ट ले ले मैंने, एक S1 एंड S2. तुसी ये तो देखते ही हो, एक ही है PN जंक्शन मतलब पॉजिटिव पार्ट एंड नैगेटिव पार्ट. उस तो बाद मैंने उन्होंने लोड रजिस्टेंस के नाल जोड़िया होया. लोड रजिस्टेंस नाल क्यों जोड़िया होया, क्योंकि इत्थे वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो मैंने लैसर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए. ठीक है, हुण आपां ने की करना, ये AC करंट आ वाला अपने कोल AC है इन दी वेव फॉर्म, इनू आपां ने DC दे विच कन्वर्ट करना. देखो किवें कन्वर्ट हुंदा, देखो ध्यान की हुंदा अपने कोल
ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਟ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਹਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਸਟ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ 0 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਥੀਟਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਥੀਟਾ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਟੂ ਪਾਈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ S1 ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈंने ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਐਂਡ S2 ਨੂੰ मैंने ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ S2 ਨੂੰ मैंने ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਦੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, P ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, P ਟਰਮੀਨਲ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ S1, ਜਦੋਂ S1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ट्रू कनेक्शन, इट इज़ कॉल्ड ट्रू कनेक्शन। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब देयर इज़ अ करंट फ्लो, मतलब देयर इज़ अ ऑन सर्किट एक्टिवेशन करंट, एंड जो एक्टिवेशन करंट होया मतलब देरे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ करंट फ्लो करन लग गया, कुछ अपने को करंट फ्लो होने लग गया, वोल्टेज ड्रॉप आ गई, वोल्टेज ड्रॉप आई मतलब लाइट चमक गई, जो लाइट चमक गई दैन अपने देखा भी अपने को इस तरह का पॉजिटिव साइकिल, इस तरह की पॉजिटिव आउटपुट आ गई, समझ आया। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫॉरवर्ड ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ S1 ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ P ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ we have discussed about the true connection forward biasing. Forward biasing, there is a activation mode, there is a current flow in the on circuit from the Ohm's law, voltage drop होया then अपने को current flow करन लग गया, मतलब अपने को इस तरह दी लाइट चमक गई, इस तरह की मेरे को वेव बन गई इन द पॉजिटिव मूड, आउटपुट आ गई। हुण मैं नैगेटिव हाफ साइकिल दे विच देखदी हां, आ नैगेटिव हाफ साइकिल दे विच देखदी हां, जो नैगेटिव हाफ साइकिल लिया दैन मेरे को की होया S1 ਨੂੰ मैंने नैगेटिव नाल कनैक्ट किया एंड S2 ਨੂੰ मैंने पॉजिटिव नाल कनैक्ट करता, मतलब मेरा जिहड़ा नैगेटिव आ वो पॉजिटिव P नाल जुड़ गया, नैगेटिव टर्मिनल P नाल जुड़ गया, मतलब दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग मतलब कॉल्ड फॉल्स कनेक्शन, फॉल्स कनेक्शन मतलब देयर इज़ अ डीएक्टिवेशन मोड, देयर इज़ नो करंट फ्लोज, देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप, मतलब इत्थे मेरे को कोई आउटपुट नहीं आई, मतलब इत्थे मेरे को कोई लाइट नहीं चमकी, जो लाइट नहीं चमकी दैन मेरे को इत्थे कोई वोल्टेज नहीं आई। फिर मैंने रिपीट किया दोबारा हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरे ते फिर तो रिपीट किया, फिर तो मैंने देखा फॉरवर्ड बाइसिंग आ गई, S1 मेरे को पॉजिटिव आया, S2 मेरे को नैगेटिव आया, फिर तो मेरे को आ चीज़ बन गई। एंड फिर तो मैंने देखा भी मेरे को नैगेटिव हाफ साइकिल है, नैगेटिव हाफ साइकिल के मेरे को रिवर्स बन गया, फिर तो मेरे को ये करंट नहीं आया, मतलब मैंने यह पता लग गया भी मेरे को जो करंट है वह इन द वन डायरैक्शन जा रहा है, वन डायरैक्शन जा रहा है, मतलब मैंने पॉजिटिव 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 मिल रहा है भी, मतलब मेरे को बैटरी चार्जर जो है वो मेरा फुली चार्ज हो जाऊगा पॉजिटिव पॉजिटिव, बट नैगेटिव के कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब इतने पॉजिटिव इतने चार्ज हो जाऊगा, इतने इनू टाइम लगूगा, फिर पॉजिटिव लूगा फिर टाइम लगूगा, फिर पॉजिटिव लूगा फिर टाइम लगूगा, है ना। पर जे मेरे को AC दे विच ये हुंदा पॉजिटिव लैंदा फिर नैगेटिव, मतलब एक पासे एक्टिवेशन हो जाती, फिर एक्टिवेशन मतलब एक पासे चार्ज हो जाता, फिर डिस्चार्ज भी हो जाता, मतलब AC दे नाल तां वो चार्ज होना नहीं सी, फिर उन्होंने अपने DC च कन्वर्ट करता, जो DC च देखिया DC च पॉजिटिव साइकिल तो बन गए इन द वन डायरैक्शन भी बन गया, मतलब पॉजिटिव नैगेटिव नहीं बनया, वन डायरैक्शन बन गया, बट इत्थे टाइम कंज्यूमिंग हो गया, मतलब इत्थे उन्होंने टाइम लगू दोबारा उन्होंने पॉजिटिव साइकिल जाने लई, फिर उन्होंने टाइम लगू, फिर उन्होंने टाइम लगू, मतलब इन्हू टाइम लगू, फिर इनू रिमूव करने लिए इनू ओवरकम करने लिए आप नैक्सट टाइप लैके आए, किहड़ी टाइप लैके आए, फुल वेव रैक्टिफायर। फुल वेव रैक्टिफायर दे विच सर्किट का चेंज होगा ही, क्योंकि ये अपने एक डायोड यूज़ की, एक डायोड के नाल फॉरवर्ड बाइसिंग आई, अपने को एक साइकिल बनया, दूसरा साइकिल रह गया नैगेटिव साइकिल वाला, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग दे चली गई, आ रिवर्स बाइसिंग दे विच आपां नूं पता भी देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग, है ना। फिर आपने की किया फुल वेव रैक्टिफायर ले आए, जो फुल वेव रैक्टिफायर ले आए सारा सर्किट ओमिया ओमी अपने को ट्रांसफॉर्मर लगाया, बट इत्थे मैंने 2 डायोड्स लगाती हैं, जो 2 डायोड्स लगाइया तो तुम सोचोगे भी इत्थे आप लोड रजिस्टेंस लगा देंगे, जे मैंने इत्थे लोड रजिस्टेंस लगा देंगी दैन की हो जाता, इत्थों करंट तो फ्लो करते फॉरवर्ड के विचों, जे मेरे को S1 पॉजिटिव होंदा इत्थे आके ब्लॉक हो जाता, जो ब्लॉक हो जाता क्योंकि तो नैगेटिव टर्मिनल नाल जुड़ रहा,
S2 मेरे को नैगेटिव हुंदा, P मेरे को नैगेटिव नाल जुड़दा, इत्थे ब्लॉक हो जांदा, कोई भी करंट नहीं सी फ्लो करदा। दैन फिर उन्होंने सोचा भी इस तरह करंट नूं लगाया जावे, दोने नैगेटिव नूं आपस दे विच कनैक्ट करके लोड रजिस्टेंस नूं इस तरह लगाया जावे ताकि वोल्टेज ड्रॉप इनू सेंटर दे विच एवें आउटपुट दे नाल जोड़ता। इनू बोलिया गया सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। क्यों इस करके बोलिया गया क्योंकि इहदी जिहड़ी लोड रजिस्टेंस आ इज कनैक्टेड विद द सेंटर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, इस करके इनू सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर बोलिया गया। क्लीयर होया? इस करके आपां ने दो डायोड्स यूज़ कीतियां ने भी जे एक फॉरवर्ड दे विच रहू दूसरी रिवर्स दे विच रहूगी, करंट दा मेरा फ्लो करूगा ना इत्थों दे विच दी, है ना, फ्लो करूगा। जे मैं की करदी इत्थे रजिस्टेंस लगा दिंदी दैन इहदे नाल की हुंदा, इत्थे करंट दा फ्लो करदा, इत्थे करंट ने फ्लो ही नहीं सी करना। जो इत्थे करंट फ्लो नहीं सी करदा नैगेटिव आ जांदी दैन अपने कोल कोई भी आउटपुट नहीं सी आनी। इस करके आपां ने उहनूं इस वे दे नाल जोड़िया भी ताकि जे मेरे को रिवर्स वाइस भी हो जाती है दैन ये मैनू आउटपुट के कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। ओके, उस तरह का ही साइकिल लेना। देखो जिमें मैंने पहला लिया पॉजिटिव, जो पॉजिटिव लिया 0 to π लाइक कर रहा मेरा थीटा, दैन पॉजिटिव हाफ साइकिल के S1 ले ली मैंने पॉजिटिव एंड S2 मैंने ले ली नैगेटिव। जो S2 पॉजिटिव ली दैन P टर्मिनल मेरा पॉजिटिव हो गया, P टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव के नाल D1 मेरी पॉजिटिव होगी, बट S2 मेरे को की होगी नैगेटिव क्योंकि P नैगेटिव नाल जुड़ गया। रिवर्स बाइसिंग होगी मतलब इतने कोई भी करंट फ्लो नहीं करूँगा। हुण मेरा करंट किहदे थ्रू फ्लो कर रहा D1 नाल फ्लो कर रहा, वो एवें फ्लो करके इधर नूं जाके दैन वोल्टेज ड्रॉप हो गए, मेरे को की आ गई आउटपुट आ गई थ्रू सेंट्रल ट्रांसफार्मर, एवें मेरे को आउटपुट आ गई। मतलब D1 मेरी एक्टिवेशन होई कली, D2 मेरे को की होगी नैगेटिव मतलब रिवर्स बाइसिंग दे विच चली गया। दैन आह वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, डायरैक्शन ऑफ करंट कई बार पूछ सकते हैं कि मैं अपने को गया पहला S1 दे विच गया, डायोड दे विच गया, उस तो बाद की गया C दे विच दी फ्लो मतलब ये कोई भी चीज़ लै लो, इत्थे C D कुछ भी लै लो, एक पॉइंट लै लिया मैंने। फिर लोड रजिस्टेंस दे विच दी जांदा होया सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर तो जांदा होया किहदे विच चला गया S1। एवें मेरा सर्किट पूरा हो गया इन द फॉरवर्ड बाइसिंग, जो D1 मेरे को की है पॉजिटिव, एवें मेरे को बन गया। हुण की होया अगले दे विच जो मैंने नैगेटिव हाफ साइकिल लिया मतलब π to 2π लिया, दैन मेरे को की होया S1 तो मेरे को नैगेटिव हो गई, S1 मेरे को नैगेटिव हो गई एंड S2 मेरे को की होगी हुण पॉजिटिव। जो S2 पॉजिटिव हो गई हुण मेरे को की होया इत्थे नहीं मेरे को कोई भी करंट फ्लो कर रहा क्योंकि नैगेटिव हो गई, P नूं नैगेटिव नाल जोड़ता, इत्थे मेरे को पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव P नाल जुड़ गया। जो P पॉजिटिव नाल जुड़ गया दैन इत्थों की करंट मेरे को फ्लो कर रहा, इत्थों की करंट मेरे को एवें फ्लो करके वोल्टेज ड्रॉप हो गई, मेरे को की आ गई आउटपुट, मतलब नैगेटिव के थ्रू भी मेरे को की आ गई आउटपुट आ गई इस वे दे विच, लाइट चमक गई। फिर मैंने प्रोसैस रिपीट की, फिर प्रोसैस रिपीट की, मैंने फिर तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लिया, इत्थे मेरे को S1 पॉजिटिव आ गई, D1 करंट फ्लो करन लग गया एंड D2 मेरे को की आ गई रिवर्स वाइसिंग आ गई, इत्थे मेरे को करंट नहीं फ्लो कर रहा सी, फिर तो मेरे को आई। फिर मैंने की किया S1 नैगेटिव ले ली, S2 पॉजिटिव ले ली, मेरे को इस तरह की प्रोसैस आती गई। तो मैंने हुण इत्थे की देखा भी इत्थे मेरे को बैटरी चार्जिंग रुकूगी नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, मतलब सिंपल मेरे को एक डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो होंदा जाऊ, इनू बोलते हैं DC करंट, जिहड़ा एक डायरैक्शन दे विच ही फ्लो करदा। समझ आ गई? इस वे दे विच यूजिंग रेक्टिफायर्स वी कैन कन्वर्ट द AC करंट इनटू द अल्टरनेटिंग करंट इनटू द DC मतलब डायरेक्ट करंट। ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड फुली रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हाफ वेव थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सीगा, ये एक शैल बनने तो बाद फिर टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा जिहा रहिंदा सी, नैगेटिवली कुछ भी नहीं सी आंदा क्योंकि देर इत्थे अपने कोल एक डायोड यूज़ हुई सी। ओके बेटा, क्लीयर हो गया? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई दैन मैनू दस दिओ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, दैन मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।